ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. اس کی سیلری بھی تو بڑی ہوگی نا؟ بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی جب پروموشن ہوتی ہے تو سیلری بھی بڑھتی ہے. بہت اچھی لڑکی ہے. دیکھو کس طرح اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، حالانکہ اتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک کہہ نہیں آپ امی. اللہ میاں اسے نظر بد سے بچائے. بہت پیاری بچی ہے. ایسے وقت میں تو لڑکیاں ہمت ہار جاتی ہیں. ایمان بہت محنتی ہے. ویسے امی میں مسکان کے بارے میں آپ ہی سے بات کرنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کافی کالز کیے لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھایا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں مسکان کے گھر رشتہ لے کے چلے جانا چاہیے. ایک دفعہ مہک کو راضی کر لیں، پھر سکون سے ہم مسکان کے گھر چلے جائیں. ابھی نہیں. امی وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی ہیں. نہیں بیٹا، لگتا ہے مجھے ان کے گھر جانا پڑے گا. تم وہاں نہیں جاؤ. ویسے ہی مہک کے گھر میں بہت مسئلے ہو رہے ہیں شاویر کی دوسری شادی کے بعد. ٹھیک ہے امی. میں خود مہک سے بات کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ راضی ہو جائے. آپ ان سے بات کریں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میں ان سے خود بات کروں. مجھے سمجھ نہیں آتا تیری وجہ سے مجھے اور کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے. اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے میرا نام لے کے جھوٹ بولنا پڑا؟ ہائے ہائے. شاویر نے پیسے مانگے تھے مجھ سے اور میں نے کہہ دیا کہ وہ پیسے میں نے تجھے دیے ہیں. میں نے کون سے پیسے مانگے ہیں تجھ سے؟ میرا نام کیوں لے لیا؟ تو اور کیا کرتی میں نے اسے کہہ دیا کہ تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے. مانور، وہ قرضہ چکانے کے لیے میں نے پیسے تجھے دے دیے. مانور، ویسے وہ پیسے ہیں کہاں؟ وہ میرے پاس ہے، میں نے رکھے ہوئے. تیرے پاس پیسے محفوظ نہیں رہیں گے. سن، ایسا کر تو صبح یہ سارے پیسے مجھے دے دے. تو کیا کرے گی ان پیسوں کا؟ میں کچھ بھی کروں؟ دیکھ، آخر میں یہ پیسے تیرے ہی کام آئیں گے، اس لیے شرافت سے پیسے مجھے دے دے. اچھا ٹھیک ہے، دے دوں گی. اب نا بس، شاویر کا ہاتھ ان دنوں بہت تنگ ہے. میں چاہ کر بھی اس سے مزید پیسے نہیں مانگ سکتی. اس کے پاس نا بہت پیسہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکل نہیں رہا. تو ذرا سی اپنی انگلیاں ٹیڑھی کرے گی نا تو پھر دیکھ پیسوں کی بارش ہوگی. سمجھی؟ جانا مانور، جا کر کچن سے کچھ لا دے. کبھی کوئی کام نا خود بھی کر لیا کر. بہت بھوک لگ رہی ہے. میں نے تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، اور سارے کام میں خود کروں. تیری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ اپنی ماں کا خیال رکھا کرنا. جانا. اچھا بس یار. ہائے، پیسے آنے والے ہیں، بڑا ہی مزہ آئے گا. میرے کتنے کام رکے پڑے تھے نا، سارے کر لوں گی میں. کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ تمہارے اور شاہویر کے بارے میں سوچ رہی تھی. آپ میرے بارے میں سوچا کریں، مگر شاہویر، کیوں بیٹا؟ اس کے بارے میں سوچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اب بھی تم اس کے ساتھ رشتے میں بندھی ہوئی ہو، شوہر ہے وہ تمہارا. میں یہ رشتہ بہت جلد ختم کر دوں. امی،
नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि तुम्हारी शादी हुई है बेटा। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बेटा दिया है तुम्हें, वरना आजकल तो लड़कियां घरों में ही बैठे बूढ़ी हो जाती हैं, उम्र निकल जाती हैं, उनकी शादियां नहीं होती। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। अगर शादी के बाद इंसान की जिंदगी ऐसी हो जाती है तो फिर बहुत बेहतर यही है कि वो लड़कियां अपने घरों में बैठी। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की आने वाली किस्तें अब निहायत दिलचस्प मोड़ लेने वाली हैं, क्योंकि आने एपिसोड में आप देखें गे कि जहां महक बना अपना बच्चा होने के बावजूद मां बनने जा रही है, फबीहा ये बात गहराई से महसूस कर चुकी है कि उसका भाई ज़ेन महक के हाथों बहुत सुकून में है। महक की गोद में उसे जैसा प्यार और ममता का लम्स मिलता है, क्योंकि महक के दिल में पहले ही बच्चों के लिए बेहद मोहब्बत मौजूद है। उसी लिए ड्रामे में नया ट्विस्ट ये आने वाला है कि बहुत जल्दी ये दिखाया जाएगा कि फबीहा की वल्दा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। उसके बाद ज़ेन की सारी जिम्मेदारी किसी नीनी के स्पुर्द करना मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया की कोई औरत माँ जैसा खुलूस और माँ जैसी मोहब्बत नहीं दे सकती। लेकिन जिस औरत की मामताई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, वो इस कमी को किसी और के बच्चे की परवरिश करके पूरा कर सकती है, और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। इसीलिए ज़ेन की तमाम जिम्मेदारियां अब महक के हाथों में आने वाली हैं। बहुत जल्द ज़ेन भी महक को आमी लेके कर पुकारने लगेगा, और महक को भी ज़ेन में अपने ही बच्चों जैसा प्यार महसूस होगा। वो उसकी देखभाल इस तरह करेगी जैसे उसे अपनी दुआओं का सिला मिल गया हो। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे बच्चे का सहारा बनना जिसके सिर से माँ का साया उठ चुका हो, न सिर्फ सवाब का काम है बल्कि इंसान की हमदर्दी और इंसानियत की आले मिसाल भी है। तो क्या आप सबको भी यही लगता है कि आने वाली गेस्टों में यही कुछ होने वाला है? क्या वाकई ज़ेन को महक के हाथों सौंप दिया जाएगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सके। ड्रामा मेरी बहुएं की अगली किस्तों में कहानी एक नए और जज्बाती रुख की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वाक़या आगे बढ़ता है, महक की शख्सियत एक ऐसी औरत के तौर पर सामने आ रही है जो न सिर्फ खुद महरूमी का शिकार रही है बल्कि दूसरों के दुख दर्द को भी अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेती है। फबीहा ने यह महसूस कर लिया है कि उसका भाई ज़ेन महक के साथ खुद को नहायत महफूज और पुरस्कुन महसूस करता है। महक की गोद में बैठते ही ज़ेन के चेहरे पर जो इत्मीनान आ जाता है वो किसी माजज़े से कम नहीं। शायद इसलिए फबीहा के दिल में ये बात पूरी तरह बैठ गई है कि अगर ज़ेन के लिए कोई बेहतरीन सहारा हो सकता है तो वो महक ही है। अब कहानी में जो सबसे बड़ा धचका आने वाला है वो फबीहा की माँ की नागहानी मौत है। माँ के दुनिया से रुखसत होने के बाद ज़ेन की जिंदगी एकदम तन्हाई और बेसहारगी का शिकार हो जाएगी। उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जो न सिर्फ उसे प्यार दे बल्कि उसके दिल में माँ की कमी का एहसास भी कम कर सके। फबीहा के लिए ये एक मुश्किल फैसला होगा कि वो ज़ेन की जिम्मेदारी किसी नीनी या अजनबी के हवाले करे, क्योंकि माँ जैसा प्यार देने वाला कोई नहीं हो सकता। मगर महक वे औरत है जिसने हमेशा माँ बनने की ख्वाहिश दिल में संभाल कर रखी है, मगर उसे कभी ये नामत हासिल न हो सकी। उसी कमी की वजह से वो ज़ेन के साथ इस तरह जड़ गई है जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। आने वाले मनाजिर में दिखाया जाएगा कि महक न सिर्फ ज़ेन को मुकम्मल तौज और मोहब्बत देगी बल्कि उसकी तरबियत महक की ज़िंदगी में ये नया मोड़ न सिर्फ उसके किरदार को मजबूत दिखाएगा बल्कि कहानी को भी इंतहाई जज्बाती रंग दे देगा। जैसे जैसे ड्रामे की कहानी आगे बढ़ती है, महक का ज़ेन पर बढ़ता हुआ प्यार और उसके लिए हर हद तक जाने की ख्वाहिश सामने आएगी। महक के दिल में हमेशा से माँ बनने की शदीद ख्वाहिश थी, मगर नसीब ने उसे कभी ये खुशी नहीं दी। लेकिन जब ज़ेन उसके करीब आने लगा और उसकी बनहों में सुकून महसूस करने लगा तो महक के दिल में वो खाली जगह खुद अब खुद भरने लगी। वो समझ गई कि शायद अल्लाह ने इसी रास्ते से उसकी दुआओं का जवाब दिया है।
फबीहा के लिए भी ये फैसला आसान न होगा, क्योंकि माँ की वफात के बाद घर में हर चीज बदल जाएगी। ज़ीन के लिए माँ के साए का उठ जाना बहुत बड़ा सदमा होगा। बच्चे के दिल पर यह कमी हमेशा गहरा असर छोड़ती है, मगर महक का प्यार, उसकी तौजा और उसकी बेलौस मोहब्बत बेतदरीज ज़ैन के दिल से ये खौफ और तन्हाई दूर कर देगी। आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा कि ज़ैन के रोते ही महक फौरन दौड़कर उसे गोद में उठा लेगी, उसे प्यार से बहलाएगी, उसके लिए रातों की नींदें कुर्बान करेगी और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने में कोई कमी नहीं आने देगी। महक के उस अमल से फबीहा और उसका खानदान आहिस्ता आहिस्ता ये मानने लगेंगे कि महक न सिर्फ एक अच्छी बहू है, बल्कि एक बेहतरीन माँ भी साबित हो सकती है। घर के बड़े भी देखेंगे कि ज़ीन के चेहरे पर जो खुशी महक के साथ नजर आती है वो किसी और के साथ मुमकिन नहीं। यही वजह है कि पूरा घर महक को ज़ीन की जिम्मेदारी संभालने की मुकम्मल इजाज़त दे देगा। महक भी खुद को इस किरदार में इतना ढाल लेगी कि उसे ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे ज़ीन उसका अपना खून है, उसका अपना बच्चा है। आने वाले किस्तों में जज्बाती मनाजर देखने को मिलेंगे, जैसे ज़ैन का पहली बार महक का दोपटा पकड़कर उसके पीछे चलना, रात को डर कर महक को याद करना, या फिर वो लम्हा जब वो महक को आमी कहकर पुकारेगा। ये सीन न सिर्फ दिल को छू लेने वाला होगा, बल्कि पूरी कहानी को उस एक नए रख पर ले जाएगा। उसके बाद महक का किरदार मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाएगा और ज़ीन के साथ उसका रिश्ता कहानी की बुनियाद बन जाएगा। नाज़रीन को भी यही दिखाया जाएगा कि कभी कभी रिश्ता खून का नहीं होता, बल्कि दिल का होता है। महक का दिल जिस तरह इस बच्चे के लिए धड़कने लगा है, वही इस ड्रामे का असल पैगाम है कि मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी इंसान को असल मानों में अजीम बनाते हैं। महक और ज़ैन के दरमियान बढ़ती हुई ये क़ुर्बत आने वाली क़िस्तों में और भी वाज़ेह होती जाएगी, क्योंकि माँ की वफ़ात के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। फबीहा अंदर से टूट चुकी होगी, उसकी आंखों में हर वक्त परेशानी और गम दिखाई देगा। ज़ैन की तरफ वो जितनी भी मोहब्बत करे, मगर माँ की तरह पूरा वक्त देना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। फबीहा को घर के मामलात, अपने गम और ख़ानदान की जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। ऐसे में महक का आगे बढ़ कर हर काम संभाल लेना फबीहा के दिल से एक बड़ा बोझ हटाने के मुतरादिफ होगा। वो महसूस करेगी कि अल्लाह ने उसके बच्चे के लिए बेहतरीन वसीला भेज दिया है। महक के रवैये में आने वाली तब्दीली न सिर्फ ज़ीन को मुतासिर करेगी, बल्कि पूरे घर वालों को हैरान भी करेगी। वो अब बात बात पर ज़ैन का ख्याल रखेगी, उसके कपड़े बदलना, खाना खिलाना, सोने में उसे सहलाना। हाथी की रात को अगर ज़ीन को बुखार हो जाए तो महक पूरी रात जाग कर उसके पास बैठेगी। ये सब देखकर घर के बड़े भी सर जोड़कर बैठेंगे कि वाकई ज़ैन के लिए महक और ज़ैन की ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नाजरीन को महक के किरदार की गहराई और उसके दिल की नरमी मज़ीद वाज़ेह तौर पर दिखाई देगी। घर में माँ की वफ़ात के बाद सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि पूरा घर खाली बनगा शिकार हो जाता है। हर कोने में माँ की आवाज़, उसकी हंसी, उसकी दुआएं और उसकी मौजूदगी की खुशबू रहती है। ऐसे में ज़ैन जैसे नन्हे बच्चे के लिए ये गम किसी पहाड़ से कम नहीं, मगर महक का प्यार इस गम को आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन के दिल से मिटा देगा। वो उसकी माँ की कमी को मुकम्मल नहीं कर सकती, लेकिन इस खला को मोहब्बत और तौजह से भर देगी। आने वाली किस्तों में ये भी देखने को मिलेगा कि घर के बुजुर्ग शुरू में कुछ तजब्जब का शिकार होंगे। उन्हें लगेगा शायद महक इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं, या वो जज्बात में आकर वादे कर रही है। लेकिन वक्त के साथ महक के अमल, उसकी मुस्तकिल मिजाजी और ज़ैन के लिए उसका जज्बा हर किसी का दिल जीत लेगा। ज़ैन जब भी बीमार होगा या डर कर महक को आवाज़ देगा, महक फौरन उसके पास पहुंचेगी। ये मुसलसल मोहब्बत देख कर घर वाले भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि महक के दिल में जो ममता जाग चुकी है वो मसनूई नहीं बल्कि सच्ची है। महक की अपनी जिंदगी में भी उस जिम्मेदारी से बहुत कुछ बदलने वाला है। जहां पहले उसे अपनी महरूमियों का गम था, अब उसे ज़ैन की मौजूदगी खुशियों का एहसास देगी। वो ज़ैन की छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होगी, इसके चलने के नए कदम, उसकी गलत तलफ़्फ़ुज़ से बोली गई पहली बात, उसका पहली बार महक की अंगली पकड़कर चलना, ये सब महक के लिए जिंदगी की खूबसूरत तरीन नेमतें बन जाएंगी।
ये सब मनाजिर ड्रामे को इतनी जज्बाती गहराई देंगे कि नाजरीन भी उनसे खुद को जोड़ लेंगे। दूसरी तरफ फबीहा भी महसूस करेगी कि उसके भाई के मुस्तकबल की बेहतरीन मुहाफिज महक ही है। एक मौके पर फबीहा शायद ये भी कहेगी कि महक, तुमने जीन के लिए जो कुछ किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। ये जुमला न सिर्फ महक के लिए एक एजाज होगा बल्कि इस बात का इतराफ भी कि अब महक इस घर की मजबूत सितून बन चुकी है। ड्रामे में ये भी दिखाया जाएगा कि जीन महक के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकेगा, चाहे वो स्कूल जाने की बात हो, रात को सोने का वक्त हो या खाने का। महक ही उसकी दुनिया बन जाएगी। जब ज़ेन पहली बार सबके सामने महक को एमी कहकर पुकारेगा तो ये लम्हा पूरे घर को खामोश कर देगा। हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी और महक के दिल में वो एहसास भर जाएगा जो सचमुच किसी माँ के दिल में होता है। यही वो लम्हा होगा जहां ड्रामा एक नए सफर पर गामजन होगा, एक ऐसा सफर जहां महक का किरदार न सिर्फ बहू या औरत के तौर पर बल्कि माँ के किरदार के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। यही सफर नाजरीन के दिलों को भी छू लेगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं रहती बल्कि जिंदगी के उन रिश्तों की हकीकत दिखाती है जो खून से नहीं दिल से बनते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या महक का यह किरदार आने वाली क़िस्तों में उसे उस घर की असल माँ का मकाम दिला देगा? क्या ज़ीन हमेशा के लिए उसके दिल का हिस्सा बन जाएगा? अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। जैसे जैसे कहानी अपनी गहराई में उतरती जा रही है, महक का किरदार मजीद निखरकर सामने आ रहा है। महक सिर्फ एक बेहो या घर की ज़िम्मेदार खातून के तौर पर ही नहीं बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर दिखाई दे रही है जिसके दिल में बरसों से दबी हुई ममता अब किसी चिराग की रोशनी की तरह जगमगा उठी है। माँ की वफात ने घर की फजा को जैसे सुन्नाटे में डबो दिया है, मगर उस सुन्नाटे में भी ज़ीन की मासूम आवाज़ बार बार महक को पुकारती है और यही पुकार महक के अंदर की खाली जगह को भर रही है। आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा कि महक सिर्फ ज़ैन की रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी नहीं करेगी बल्कि उसकी ज़हनी और जज़बाती कैफियत को भी समझने की कोशिश करेगी। वो जानती है कि ज़ैन की उम्र ऐसी है जहां माँ का लम्स, माँ की आवाज़ और माँ का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी लिए वो ज़ैन की नफ्सियात पर ख़ास तवज्जो देगी। वो उसे कहानियाँ सुनाएगी, उसके साथ खेल खेलेगी, उसे गोद में लिए देर तक बैठाएगी, उसके लिए वही लोरियां गाएगी जो शायद उसने कभी अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच रखी थी। महक की इन छोटी छोटी कोशिशों से ज़ैन के अंदर का खौफ कम होने लगेगा। वो महक के चेहरे पर वही सुकून तलाश करेगा जो उसे अपनी माँ में मिलता था। कभी कभी ज़ैन महक के कंधे पर सर रख कर सो जाएगा और महक वो लम्हा इस तरह महसूस करेगी जैसे उसके पूरे वजूद को किसी ने मुकम्मल कर दिया हो। वो रातों में जाग कर ज़ीन का ख्याल रखेगी, उसका बुखार चेक करेगी, उसकी नींद में होने वाली बेचैनी पर परेशान होगी। ये सब मोहब्बत उसके किरदार को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। इधर घर वाले भी देखेंगे कि महक ने कैसे अपने आप को बदल लिया है। वो जो पहले शायद एक खामोश बेज़ुबान सी लड़की थी, अब एक मजबूत, बर्दाश्त से भरपूर और मोहब्बत देने वाली औरत बनकर सामने आ रही है। वो घर की दूसरी औरतों के लिए भी एक मिसाल बन जाएगी। फबीहा जब भी ज़ैन को महक के पास हंसते हुए देखेगी तो उसके दिल से एक बड़ी फ़क्र कम हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि माँ की जुदाई का सदमा ज़ैन को जितना तोड़ सकता था, महक का होना उसे इतना ही संभाल रहा है। कहानी में ये भी दिखाया जाएगा कि महक ज़ैन की तरबियत में कभी कोताही नहीं करेगी। वो उसे अखलाक, मोहब्बत, अदब और एतमाद की तरबियत देगी। जब ज़ैन कभी गलती करेगा तो महक उसे गुस्से से नहीं बल्कि नरमी और समझदारी से समझाएगी। यही रवैया नाज़रीन को दिखाए कि हकीकी माँ बनने के लिए सिर्फ जीने का रिश्ता ज़रूरी नहीं होता, एक सच्चा दिल और साफ नीयत भी काफ़ी है। एक मौके पर शायद वो मंजर भी दिखाया जाएगा जहां ज़ैन किसी तकरीब में या लोगों के सामने महक का हाथ पकड़कर कहेगा, ये मेरी अम्मी है। इस जुमले से पूरा मंजर रख सा जाएगा। फबीहा की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। घर के दूसरे लोग भी हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से भर जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वो महक होगी जिसकी रोए तक ये लफ्ज उतर जाएगा। ये लम्हा ड्रामे को ना सिर्फ एक जज्बाती उरूज देगा बल्कि महक की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम भी बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या महक ज़ैन के मुस्तकबल में वाकई
वो रोशनी साबित होगी जिसकी सबको उम्मीद है। क्या ज़ेन भी महक की ममता का जवाब वैसी ही मोहब्बत से देगा? और ये रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होकर घर में नई खुशियों का सबब बनेगा। आपकी कीमती राय का हमें बेहद इंतज़ार रहेगा। महक और ज़ेन की कहानी का अगला मरहला मजीद जज्बात, आजमाइशों और रिश्तों की गहराई से भरपूर दिखाया जाएगा। माँ की वफात के बाद घर में जो खला पैदा हुआ है वो हर किसी के चेहरे और रवैये से झलकने लगा है। खास तौर पर ज़ेन की मासूम आंखों में वो सवाल साफ दिखाई देता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। उम्मी कहाँ है? ये सवाल न सिर्फ देखने वालों को रुला देगा बल्कि महक के दिल को भी कई बार चीर कर रख देगा। यही लम्हे महक को मजबूर करेंगे कि वो अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दे और ज़ेन को वही प्यार दे जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। महक के किरदार में जो तब्दीली आएगी वो इंतहाई काबिल दीद होगी। वो न सिर्फ ज़ेन के लिए जिस्मानी तौर पर मौजूद रहेगी बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी उसका सहारा बनेगी। ज़ेन अगर रात को डर कर जाग जाए तो महक उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरेगी, उसे तसल्ली देगी। वो उसके लिए वही लोरी गाएगी जो शायद उसने कभी अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच रखी थी। महक के अंदर की ममता हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जाएगी। ड्रामे में ऐसे सीन भी दिखाए जाएंगे जहां महक की अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात और जिम्मेदारियों के दरमियान तदाद कायम होगा। कभी उसे घर के काम निभाने होंगे, कभी अपनी ससुराल की तौक़ात पूरी करनी होंगी और साथ ही ज़ेन की देखभाल भी करनी होगी। कुछ लोग उस पर एतराज़ करेंगे कि वो हद से ज़्यादा ज़ेन को वक्त देती है, जबकि कुछ लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। मगर महक हर बात सुनकर भी अपने रास्ते से नहीं हटेगी, क्योंकि ज़ेन के साथ उसका रिश्ता अब दिल का रिश्ता बन चुका है, ना कि सिर्फ जिम्मेदारी का। एक बहुत जज्बाती मंजर में ये भी दिखाया जा सकता है कि ज़ेन महक के बगैर स्कूल जाने से इनकार कर देगा। वो रोते हुए कहेगा कि महक अम्मी भी साथ चलें। ये लम्हा न सिर्फ घर वालों को हैरान कर देगा बल्कि महक के दिल को भी गहरी खुशी देगा। फबीहा भी ये मंजर देखकर खुद को रोक नहीं सकेगी और वो अपनी आंखों से बहते आंसू छुपाए बगैर महक से कहेगी, तुमने ज़ेन को वो प्यार दिया है जो शायद उसकी अपनी माँ भी ना दे पाती। ये मुकालमा महक के किरदार को और भी मजबूत बना देगा। वो घर में अब सिर्फ एक बहू नहीं रहेगी बल्कि ज़ेन की माँ के तौर पर उसकी पहचान बन जाएगी। यही वो वक्त होगा जब महक आहिस्ता आहिस्ता घर की महवर बनती जाएगी। उसकी बातों को अहमियत दी जाएगी, उसके फैसले माने जाएंगे और सबसे बढ़कर वो खुद भी अपने अंदर एतमाद महसूस करेगी कि वो वाकई ज़ेन की ज़िंदगी में वो रोशनी बन चुकी है जिस कि उसे ज़रूरत थी। ड्रामे में एक और अहम मोड़ वो होगा जब महक के उस रिश्ते को कुछ लोग गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। कुछ किरदार कहेंगे कि महक हद से ज़्यादा ज़ेन पर तवज्जो दे रही है, लेकिन फबीहा और घर के बड़े महक का साथ देंगे और उसे खुलकर ज़ेन की जिम्मेदारी निभाने की इजाज़त देंगे। उससे कहानी में मजबूत पैगाम मिलेगा कि सच्चाई, खुलूस और नीयत की पाकीज़गी हमेशा जीतती है। इख्तिताम के करीब महक खुद भी महसूस करेगी कि जैसे ज़ेन सिर्फ उसका फ़र्ज़ नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की दुआ का जवाब है। वो लम्हा जब ज़ेन खुद चलकर महक की गोद में आ बैठेगा और कहेगा, महक आमी मुझे नींद आ रही है। ये लम्हा न सिर्फ महक के दिल को सुकून देगा बल्कि पूरे ड्रामे को एक नई रूह भी देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या महक का ये सफ़र उसे उस घर में न सिर्फ मकाम बल्कि मोहब्बत भी दिलाएगा? क्या ज़ेन का ये रिश्ता उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा? अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके ख़यालात हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, महक और ज़ेन के ताल्लुक़ की मजबूती एक नए ज़ाविये से सामने आती जाएगी। माँ की मौत के बाद घर में जो उदासी और बेबसी की कैफियत पैदा हुई है वो हर किरदार के चेहरे से झलकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर ज़ेन की मासूम रूह पर हुआ है। वो अभी इतना बड़ा नहीं कि मौत का मतलब समझ सके, मगर इतना ज़रूर जान गया है कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई है। इसी कमी का खला महक पूरे अखलास और पूरी मोहब्बत से पर करने की कोशिश करेगी। आने वाली किस्तों में आप देखेंगे कि महक न सिर्फ ज़ेन की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेगी बल्कि उसके एहसासात और खौफ को भी समझने लगेगी। वो इस बात का
खास ख्याल रखेगी कि ज़ेन को कभी तन्हा ना महसूस होने दे। वो उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाएगी, उसके कपड़े खुद पहनाएगी, उसे कंघी करेगी, और अगर वो उदास बैठा हो तो उसे हंसाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ये छोटे छोटे लम्हात महक के किरदार में एक नई मिठास और नरमी का इजाफा करेंगे। महक की यही खुलूस भरी तौजा देख कर घर के बड़े भी हैरान रह जाएंगे कि वो बहू जिसे कभी बोलने में भी झुझक महसूस होती थी, आज कैसे इतनी जिम्मेदार, मजबूत और सुलझी हुई औरत बन गई है। फबीहा भी कई बार आंखों में नमी लिए महक को ज़ेन के साथ देखेगी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कि उसने ज़ेन की जिंदगी में इतना बेहतरीन सहारा भेजा। फबीहा ये भी सोचेगी कि अगर महक ना होती तो शायद ज़ेन इस सदमे से कभी बाहर न आ पाता। ड्रामे के अहम सीनर्स में से एक वो होगा जहां ज़ेन किसी रात बुखार में तप रहा होगा, पूरा खानदान परेशान होगा, दवाएं पट्टियां दुआएं सबकी जाएंगी, मगर ज़ेन महक की गोद से हिलने से इनकार कर देगा। महक सारी रात उसको सीने से लगाए बैठी रहेगी, उसका माथा चूमती रहेगी, उसकी पश्त सहलाती रहेगी। जब सुबह ज़ेन की तबीयत बेहतर होगी और वो आंख खोलते ही महक को देखकर मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराहट महक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाएगी। ये मंजर नाजरीन को भी गहराई से मुतासिर करेगा। आने वाले दिनों में ज़ेन का स्कूल जाना, नए माहौल से घबराना और महक का उसे हिम्मत देना भी कहानी का अहम हिस्सा होगा। एक सीन में वो दिखाएंगे कि ज़ेन स्कूल जाने से पहले महक का दोपठा पकड़कर कहेगा, महक में भी चलेंगी ना। ये जुमला न सिर्फ महक के दिल को पिघला देगा, बल्कि घर के सब लोगों को भी एहसास दिलाएगा कि ज़ेन ने दिल से महक को अपनी माँ का मकाम दे दिया है। महक भी इस मकाम को पूरी जिम्मेदारी से निभाएगी। वो ज़ेन के होमवर्क में मदद करेगी, उसे नई चीज़ें सिखाएगी और उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुशी से झूम उठेगी। ज़ेन जब पहली दफ़ा महक को कार्ड बना कर देगा जिस पर आई लव यू अम्मी लिखा होगा, तो महक के लिए ये न सिर्फ अनमोल तोहफा होगा बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी भी। कहानी के उस सफ़र में महक का दिल कई बार टूटेगा, भी कभी ख़ानदान की बातों से, कभी अपने माजी की तलखियों से और कभी उस खौफ से कि कहीं वो ज़ेन के लिए काफ़ी साबित न हो सके। मगर हर बार ज़ेन की एक मुस्कुराहट, एक गले लगना या एक सादा सा अम्मी कहना महक को फिर से मजबूत बना देगा। ये ताल्लुक़ अब महज फ़र्द का ना रहेगा बल्कि दोनों की ज़िंदगियों का मरकज़ बन जाएगा। महक ज़ेन के लिए वो रोशनी साबित होगी जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है, और ज़ेन महक के लिए वो दाह जिसे अल्लाह ने देर से मगर बेहतरीन तरीक़े से कबूल किया है। आपका क्या ख्याल है? क्या महक और ज़ेन का ये रिश्ता ड्रामे की सबसे मजबूत बुनियाद यारा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, महक की शख्सियत में नरमी, तहमिल और मोहब्बत की गहराई मज़ीद उजागर होती जा रही है। माँ की वफ़ात के बाद ज़ेन की ज़िंदगी में जो खला पैदा हुआ है वो न सिर्फ उसके दिनों को उदास बनाता है बल्कि रातों को भी बेचैनी से भर देता है। महक की मौजूदगी इस कला को आहिस्ता आहिस्ता भरने लगती है। आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा कि महक ज़ेन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने लगती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, खेल कूद के लम्हे या रात को सोने के वक्त का सुकून। महक हर लम्हे उस बात को यकीनी बनाती है कि ज़ेन कभी खुद को अकेला महसूस न करे। ड्रामे में कुछ जज्बाती मंजर भी देखने को मिलेंगे जहां ज़ेन रात को डर कर जाग जाए या किसी छोटे हादसे से डर जाए तो महक फौरन उसके पास होगी। वही उसे गोद में लेकर उसका खौफ दूर करेगी, उसके माथे पर हाथ फिरेगी और उसे तसल्ली देगी। ये छोटे छोटे लम्हात महक की ममता को मज़ीद मजबूत करेंगे और ज़ेन के दिल में एक एतमाद पैदा करेंगे कि अब उसकी ज़िंदगी में उसे कभी तन्हा नहीं रहना पड़ेगा। घर के बाकी अफराद भी महक की इस मोहब्बत और खुलूस को देखकर मुतासिर होंगे। पहले जो लोग महक के किरदार को कमतर समझते थे या उसकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते थे, अब वो महक की अहमियत को तस्लीम करेंगे। फबीहा भी अक्सर ये महसूस करेगी कि महक के बगैर ज़ेन का मुस्तकबल महफूज नहीं रह सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता महक पर मुकम्मल भरोसा करने लगेगी और महक की हर बात को अहमियत देगी। ड्रामे में ये भी दिखाया जाएगा कि महक ज़ेन के लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और आराम को कुर्बान कर रही है। वो रात भर जाग कर उसकी देखभाल करेगी, उसकी सेहत का ख्याल रखेगी और उसकी खुशियों को अपनी खुशियों की तरह महसूस
करेगी। कभी कभी महक को अपने माजी की यादें सताएंगी, लेकिन ज़ीन की मासूम मुस्कुराहट उसे फौरन सुकून दे देगी और वो दोबारा अपनी जिम्मेदारी में मजबूत हो जाएगी। एक और दिल छू लेने वाला मंजर ये भी हो सकता है कि ज़ेन पहली बार सबके सामने महक को गले लगाए और कहे, अम्मी मुझे आपसे बहुत प्यार है। ये जुमला पूरे घर के माहौल को बदल देगा। सबके दिल उस लम्हे में पिघल जाएंगे और महक के दिल में एहसासी कामयाबी और मोहब्बत की लहर दौड़ जाएगी कि वो वाकई ज़ेन के लिए वो सब कुछ है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। ये ताल्लुक अब महज फ़र्ज या ज़िम्मेदारी का नहीं रहा, बल्कि दिलों की मोहब्बत और रूह की हम आहंगी का रिश्ता बन चुका है। महक ज़ेन के लिए न सिर्फ माँ की तरह बल्कि एक हकीकी मुहाफ़िज़ और रहनुमा के तौर पर भी उभर कर सामने आएगी। ज़ेन भी आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की कदर करने लगेगा और दोनों के दरमियान एक मजबूत जज्बाती बंधन कायम हो जाएगा। आपके ख्याल में क्या महक की ये मोहब्बत और कुर्बानी उसे ज़ेन की ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक अहम मकाम दिलाएगी? क्या ज़ेन वाकई महक के साथ इतना मानूस हो जाएगा कि वो हमेशा उसके प्यार और तहफ़्ज़ का हिस्सा बने? अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, महक और ज़ेन के ताल्लुक़ की गहराई मज़ीद वादह और जज्बाती होती जाएगी। ज़ेन के लिए माँ का साया उठने के बाद घर का हर लम्हा और हर गोशा सन्नाटा और उदासी से भर गया है, और ये खला सिर्फ महक की मोहब्बत और तवज्जो से ही कम होने वाला है। आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा कि महक हर वक्त ज़ेन के करीब रहेगी। उसे सिर्फ जिस्मानी तौर पर सहारा नहीं देगी, बल्कि उसके जज्बात, खौफ और याददाश्तों का भी ख्याल रखेगी। महक न सिर्फ ज़ेन के खाने, कपड़ों और सोने के वक्त। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, महक और ज़ेन के ताल्लुकात की शिद्दत और गहराई नाजरीन के सामने मज़ीद वाज़ेह होगी। माँ की वफ़ात के बाद ज़ेन का दिल और ज़हन तन्हाई और उदासी से भर चुका है, और ये एहसास महक के खुलूस और मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा कि महक न सिर्फ ज़ेन की जिस्मानी देखभाल करेगी, बल्कि उसकी जज्बाती और नफ्सियाती ज़रूरियात को भी पूरा करेगी। महक ज़ेन के खेल, उसके मुताले, उसकी नींद, खाने और उसके मामूलात हर लम्हा संभालेगी, ताकि ज़ेन को हर वक्त सुकून और मोहब्बत मिलती रहे। ड्रामे में जज्बाती मनाज़र भी दिखाए जाएंगे, जहाँ ज़ेन रात को डर कर जाग जाए या किसी छोटे हादसे के बाद खौफज़दा हो जाए, तो महक फ़ौरन उसके पास जाएगी। वो उसे गोद में उठाएगी, उसके माथे पर हाथ फिरेगी, उसे दिलासा देगी और मोहब्बत भरी बातों से उसके दिल को सुकून पहुंचाएगी। इस तरह के लम्हे न सिर्फ महक और ज़ेन के रिश्ते को मजबूत करेंगे, बल्कि नाज़रीन के दिलों को भी छू जाएंगे। घर के दीगर अफराद महक की इस मोहब्बत और कुर्बानी को देख कर हैरतज़दा रह जाएंगे। वो ये महसूस करेंगे कि ज़ेन के लिए महक की मौजूदगी न सिर्फ ज़रूरी बल्कि उसके लिए एक नाइमत है। फबीहा भी बार बार ये सोचेगी कि अगर महक न होती तो ज़ेन की तरबियत और खुशी दोनों मुतासिर हो सकते थे। वो महक पर मुकम्मल एतमाद करेगी और उसकी हर बात और हर फैसले को तस्लीम करेगी। आने वाले सीन्स में दिखाया जाएगा कि महक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, आराम और ज़िंदगी की आसानियों को पसपशट डालकर ज़ेन की परवरिश में मुकम्मल तौर पर मशगूल रहती है। वो ज़ेन की छोटी छोटी कामयाबियों पर खुशी महसूस करेगी, जैसे पहली बार स्कूल जाना, नई चीज़ें सीखना या पहली बार कोई खुशी मनाना। ज़ेन के छोटे छोटे काम महक के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन जाएंगे। एक बहुत जज्बाती लम्हा ये भी दिखाया जाएगा जब ज़ेन पहली बार सबके सामने महक को गोद में लेकर कहेगा, अम्मी मुझे आपसे बहुत प्यार है। ये लम्हा पूरे घर में सुकून और मोहब्बत की लहर दौड़ा देगा, और महक के दिल में ये एहसास भर देगा कि उसने वाकई ज़ेन के लिए वो सब कुछ किया जो एक हकीकी माँ करती है। महक अब न सिर्फ बहू बल्कि ज़ेन की ज़िंदगी में हकीकी मुहाफ़िज़, रहनुमा और माँ के तौर पर अपना मकाम बना चुकी होगी। ज़ेन भी वक्त के साथ महक के साथ इतना मानूस हो जाएगा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत और जज्बाती बुनियाद रखेगा। आपके ख्याल में क्या महक की ये मोहब्बत और कुर्बानी ज़ेन की ज़िंदगी में मुस्तकिल खुशी और तहफ़्फ़ुज़ लाने में कामयाब होगी? क्या ज़ेन भी महक के लिए वही जज्बात और मोहब्बत महसूस करेगा जो महक उसके लिए महसूस कर रही है? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा,
महक और ज़ीन के ताल्लुकात की कहानी और भी जज्बाती और दिल को छू लेने वाली हो जाएगी। माँ की वफ़ात के बाद ज़ैन की ज़िंदगी में जो खला पैदा हुआ है वो न सिर्फ उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करेगा बल्कि उसके हर एहसास और हर हरकत में दिखाई देगा। ज़ैन को अपनी माँ की मोहब्बत की कमी हर लम्हे महसूस होगी, लेकिन महक की मौजूदगी उस खला को आहिस्ता आहिस्ता पुर करने लगेगी। आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा कि महक न सिर्फ ज़ैन की जिस्मानी देखभाल करेगी बल्कि उसके जज़्बात, खौफ और ज़हनी सुकून का भी खास ख्याल रखेगी। वो उसके साथ खेलों में शरीक होगी, उसकी तालीम में मदद करेगी, रात के वक्त उसे गोद में लेकर तसली देगी और उसे हर छोटी बड़ी चीज़ में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। ड्रामे में ऐसे मनाजर भी शामिल होंगे जहां ज़ीन किसी मामूली बात से खफजदा हो या रात को डर जाए तो महक फौरन उसके पास पहुंचकर उसे अपने सीने से लगाएगी, उसके माथे पर हाथ फेरेगी और मोहब्बत भरी बातों से उसका दिल सुकून देगी। ये तमाम लम्हे न सिर्फ नाजरीन के दिलों को छुएंगे बल्कि महक के किरदार में ममता और मोहब्बत की गहराई को भी नुमायां करेंगे। महक की ये लगन और कुर्बानी घर के दीगर अफराद को भी हैरत में डाल देगी, जो पहले शायद उसके किरदार को कमतर समझते थे या उसकी खामियों पर नज़र रखते थे। अब वो महक की अहमियत और उसके जज्बे को तस्लीम करने पर मजबूर होंगे। फबीहा भी बार बार ये महसूस करेगी कि महक न सिर्फ ज़ैन की माँ की कमी को पूरा कर रही है बल्कि इसकी परवरिश और खुशियों का मुकम्मल ख्याल रख रही है। वो महक पर मुकम्मल भरोसा करने लगेगी और महक की हर बात और हर फैसला उसे दरसत महसूस होगा। आने वाले मनाजिर में यह भी दिखाया जाएगा कि महक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, आराम और ज़िंदगी की आसानियों को पसपशट टल कर ज़ैन की तरबियत और देख भाल में मसरूफ़ रहती है। वो ज़ैन की छोटी छोटी कामयाबियों, हंसी खुशी के लम्हात और नई चीज़ें सीखने की खुशियों में खुद को शरीक महसूस करेगी। ड्रामे के सबसे जज्बाती और यादगार मनाजर में से एक वो होगा जब ज़ैन पहली बार सबके सामने महक को गोद में लेकर कहेगा, अम्मी मुझे आपसे बहुत प्यार है। ये लम्हा पूरे घर के माहौल को बदल देगा और महक के दिल में ये एहसास भर देगा कि उसने वाकई ज़ैन के लिए वो सब कुछ किया जो एक हकीकी माँ करती है। महक अब न सिर्फ बहू बल्कि ज़ैन की ज़िंदगी में मुहाफ़िज़, रहनुमा और माँ के तौर पर अपना मकाम बना चुकी होगी। ज़ैन भी वक्त के साथ महक के साथ इतना मानूस और वाबस्ता हो जाएगा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत, जज़्बाती और मोहब्बत भरा बन जाएगा। आपके ख्याल में क्या महक की ये मोहब्बत और कुर्बानी ज़ैन की ज़िंदगी में मुस्तकिल खुशी और तहफ़्फ़ुज़ लाने में कामयाब होगी? क्या ज़ैन भी महक के लिए वही जज्बात और मोहब्बत महसूस करेगा जो महक उसके लिए महसूस कर रही है? अपनी राय ज़रूर शेयर करें।